So students, now exercise C is, it is given at page number 46 in your book. So write T if the statement is true and F if the statement is false in the box. So in this, some statements are given to you and these boxes are given in which you have to write. If the statement is true, then you have to write T for that, and if the statement is false, यानी wrong जब statement है, then you have to write F for that particular statement in the given box. So let's discuss them one by one. The first one is given, solids expands on heating. Yes, solids expands on heating. This statement is true, क्योंकि जब solids को जब heat करते हैं तो उनके बीच में जो particles जो होते हैं, उनके बीच में intermolecular space जो होता है वो क्या होता है, increase हो जाता है. So that's why the statement is true and we will write T for that. T. Next is, second one is, in gas the molecules are tightly packed. गैस में मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इन गैसेज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड दे आर फ्री टू मूव. बहुत ज़्यादा दूर दूर से, दे आर वेरी फार अपार्ट एंड दे आर वेरी at very distance from each other and they are free to move. So this statement is false. So we will write F for this. Next is, third one is, an atom can be broken down into molecule. Atom जो है उसको हम break down कर सकते हैं molecules में. Children, तो this statement is false because atoms are combined to form molecule. Atom जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा small unit है. उससे ज़्यादा बड़ी unit क्या है, molecules है. Atom combine होकर क्या बनाते हैं, molecules बनाते हैं. So atoms को break down करके हम molecules नहीं बना सकते. So this statement is false. So we will write F for this in the given box. The fourth one is, alcohol is a miscible liquids. So first of all, miscible liquids are those liquid that completely dissolve in water. जो water में dissolve हो जाते हैं, that are known as miscible liquids. So we have also discussed the examples of this. Milk है, alcohol है, ये किसके examples हैं, miscible liquids के. So alcohol is an example of miscible liquids, is a miscible liquid. So this statement is true. So we will write T in the given box. So next one, fifth one is, steam is an example of a gas. जो वेपर्स होते हैं ऑन बॉइलिंग वाटर, ऑन हीटिंग वाटर, वाटर के वाटर वेपर्स बनते हैं. सो दिस स्टीम जो होती है उसी को हम स्टीम भी बोलते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैस. वो क्या है, गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं. वाटर वेपर जो है क्या है, गैसेस फॉर्म है वाटर का. सो दिस इज एन स्टीम इज एन एग्जांपल ऑफ गैस. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो वी विल राइट T for this correct statement in the given box. So this all about your exercise C. So students, our exercise D is, answer the following questions in short. In this you have to write the answers of this question in short. So question 1 is, what is matter? So as we have also discussed that matter is anything that has mass and occupies space, यानी जिसमें वजन है और जो space occupy करता है, that is known as matter. So let's see the answer. Matter is anything that occupies space. स्पेस को ऑक्यूपाई करता है एंड हैड वेट, और उसका कुछ वेट भी होता है, कुछ उसमें मास भी होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज, व्हाई डोंट गैसेस हैव अ फिक्स शेप? इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट व्हाई द गैसेस जो होते हैं उनका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है. सो स्टूडेंट, एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट गैसेस जो होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डिस्टेंस होता है एंड दे आर वेरी at very large distance from each other and they are free to move everywhere. और वो जितना भी उनको स्पेस मिलता है उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द गैसेस डोंट हैव फिक्स शेप बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज, नेम एनी 2 सॉलिड्स, 2 liquids and 2 gases that can dissolve in water. In this question students, you have to give an example of 2 solid जो water में dissolve हो जाते हैं,
2 लिक्विड जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एंड 2 गैसेज दैट इजीली डिजॉल्व इनटू द वाटर. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सॉलिड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट. एज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें हम डिस्कस किया था कि जब शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, और जब सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है. सो दीज बोथ आर द सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर. और ये किसके एग्जांपल हैं? सॉलिड्स के. नेक्स्ट देन लिक्विड्स जो है मिल्क और एल्कोहल को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं दे ऑल्सो कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू वाटर. वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट गैसेज जो वाटर में डिजॉल्व हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस दैट जो हमारा गैसेज है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजॉल्व होती हैं उसी गैस को यूज़ करते हैं एक्वाटिक एनिमल फॉर देयर ब्रीदिंग पर्पस. Now question 4 is differentiate between miscible and immiscible liquids. So students, in this question you have to write the difference between immiscible and the miscible liquids. So we have also discussed that miscible liquids that completely dissolve into each other, वो अपने आप में completely mix up हो जाते हैं, whereas immiscible liquids are those liquids that do not dissolve into each other completely. वो क्या करते हैं, एक तरह से लेयर अप बना लेते हैं, अपने आप में डिजॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल को डिजॉल्व करें वाटर में तो वो डिजॉल्व नहीं होता, ऊपर क्या होता है, ऑयल जो होता है ऊपर फ्लोट करता रहता है वाटर, क्योंकि जो ऑयल है वो लाइटर है वाटर से. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड्स दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू ईच अदर, वो लिक्विड जो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स. अगर हम एग्जांपल देखें, जिसके मिल्क है वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है. उसी तरह से अगर हम जूस को देखें, जूस है वो भी क्या होता है, वाटर में इजीली और कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है. देन एल्कोहल अगर हम देखें दैट ऑल्सो कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू वाटर. नेक्स्ट इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल लिक्विड्स के एग्जाम्पल जो है, लेट्स सी द आंसर. लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इनटू ईच अदर, वो लिक्विड जो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ऑयल एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. So student, in this question you have to write the difference between solute and solvent, and we have discussed that solute and solvent both are the part of a solution. सॉल्यूट जो होता है नॉर्मली सॉलिड पार्ट होता है सॉल्यूशन का, और सॉल्वेंट यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है सॉल्यूशन का दैट इज नोन एज सॉल्वेंट. सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में. सॉल्यूट अगर देखें तो हम स्मॉलर पोर्शन होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर पोर्शन होता है ऑफ अ सॉल्यूशन. सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी वो सब्सटेंस जो डिजॉल्व होता है, घुलता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल शुगर है, सॉल्ट है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूट. देन सॉल्वेंट अगर हम देखें, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स द सॉल्यूट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, यानी वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है दैट इज नोन एज solvent. So these all are the answers of your exercise D. So students, do this question answers of exercise D in your notebook in a good handwriting. Thank you and have a nice day.